हेलो दोस्तों। आज हम एनालिसिस करेंगे प्रोप्ड कैंटिलीवर की। प्रोप्ड कैंटिलीवर इज अ कैंटिलीवर बीम which is fixed and at one end having a support on another end। एक एंड पे फिक्स्ड और एक एंड पे हिंज सपोर्ट हो, वो बीम होती है आपकी प्रोप्ड कैंटिलीवर। दिस इज एन प्रोप्ड कैंटिलीवर। प्रोप्ड कैंटिलीवर प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम की एनालिसिस फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट एग्जाम में। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अ कैंटिलीवर, प्रोप्ड कैंटिलीवर having UDL all over the span and UDL and intensity of this UDL is W kilonewton per meter and length of the beam is L meters. This is end A and this is end B. This is reaction on support B, say R. First of all, we have to find out the value of this R. This is a reaction. This is the reaction on B. तो सबसे पहला काम रहेगा ये R फाइंड आउट करने का। एक बार अगर R मिल गया तो उसके बाद सिंपली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना रह जाएगा। R कैलकुलेट करने का क्वेश्चन काफ़ी बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो हम इस बीम की एनालिसिस करने के लिए दो केस लेंगे। फर्स्ट केस, पहले केस में विल ट्रीट इट लाइक विदाउट आर। विल ट्रीट दिस बीम एज सिंपली कैंटिलीवर बीम हैविंग यूडीएल ऑल ओवर द स्पान without considering the reaction R, and we will find the deflection due to this UDL at point B, and this will be a downward deflection. And in second case, we'll consider R without considering this UDL, and we'll get the deflection in upward direction at point B. So downward deflection at point B, due to UDL without considering R. R को कंसिडर नहीं करते हुए हम इस UDL के थ्रू इस बीम पे एनालिसिस करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है इस B पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा इस कैंटिलीवर बीम पे अगर UDL लग रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि इस पे R भी कोई चीज लग रही है। तो इसका वो नाम दे दिया सपोज YB, डिफ्लेक्शन एट B, YB। अगर कैंटिलीवर बीम पे UDL लग रहा है तो उसके एंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है WL4/8 EI। दिस इज downward deflection due to UDL at point B without considering R. Now in second case, we'll consider only R without considering the UDL, and this R will give the deflection in upward direction at point B. So deflection at point B due to R, and ये होगा upward direction में। This will be in upward direction without considering UDL। okay, and अगर कैंटिलीवर बीम इस कैंटिलीवर बीम पे दिस इज सपोज L एंड दिस इज P,
So this P will give deflection equals to W L cube, P L cube by 3EI. So this deflection at B will be equal to W L cube by 3EI. And for the condition of equilibrium, this deflection YB, and it will name YB dash. For equilibrium condition, deflection at B is 0. So YB and YB dash will be equal. This is suppose equation 1 and this is equation 2. Up on equating equation 1 and equation 2. WL4 by 8EI equals to WL3 upon 3EI. This will give, the value at B, this value of P is equal to R. Here R, that is our equation. So it will give the value of R is equal to 3 by 8 WL. सबसे पहला हमारा काम था R फाइंड आउट करने का. अब हमको R मिल गया है 3 by 8 WL. R इज इक्वल टू 3 by 8 WL. अब हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. For shear force will take a section from B at any length. This is suppose X section and this distance is X from B. Value of X will be 0 to L, and at this section X the shear force will this R and this W on certain distance X. इस X सेक्शन पे एक R एक्ट कर रहा है और एक UDL इस X डिस्टेंस पे ये एक्ट कर रहा है. अब R, ये कोई सेक्शन R लग रहा है इस सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ UDL एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ R. So this is in anti-clockwise direction R and UDL is in clockwise direction. So R will be negative and UDL will be positive. So shear force will be at X is equal to minus of R plus W into X. इस X डिस्टेंस पे W की इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, तो X डिस्टेंस पे हो जाएगा W इंटू X किलो न्यूटन. तो R की वैल्यू रखेंगे माइनस 3 by 8 WL प्लस W into X. At point 0, at X equals to 0, this is point B. At point B, X equals to 0. So shear force at B is equal to minus 3 by 8 WL. This term will be 0. तो shear force B पे आ गया minus 3 by 8 WL. And at X is equal to L. B से X is equals to L. इस पे सेक्शन आ गया A. So shear force at A. We'll put L instead of X and it will give minus 3 by 8 W into L plus W into L, and this will give us plus 5 by 8 WL. Shear force at A.
आपको शियर फोर्स ए पे मिल गया और शियर फोर्स बी पे मिल गया। नेक्स्ट अब हमको ये देखेंगे कि शियर फोर्स का साइन माइनस से प्लस चेंज हुआ, तो वो डिस्टेंस एक्स, कोई सर्टेन डिस्टेंस जिस पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, इस इक्वेशन में रख दीजिए। जीरो इज इक्वल टू माइनस 3/8 WL प्लस W into x, and this will give x equals to 3/8 into L. This is a distance x equals to 3/8 L, where value of shear force will be 0. Value of shear force will be 0. मैं वापस से यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ एक बार। This is our diagram. W kilonewton per meter. This is point A. This is point B. अगर हम shear force डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो B पर shear force की वैल्यू -3/8 WL, -3/8 WL, और A पॉइंट पर shear force +5/8 WL, प्लस ऊपर ड्रॉ करेंगे माइनस नीचे ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टेंस, इस पे shear force 0 है। दिस डिस्टेंस विल बी दिस 3/8 into L, and this value will be minus of 3/8 L, and this will be plus 5/8 WL. ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। सेम प्रोसीजर इस एक्स सेक्शन पे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट? दिस आर विल गिव दिस डायरेक्शन, this will sagging, this is sagging, and sagging is considered as positive, and the UDL will give hogging bending moment, and hogging we will consider negative bending moment. So equation will be at x, bending moment at x will be r positive, r into x, moment will be force into distance, r into x. This will give, UDL will give what? Negative bending moment, hogging bending moment, negative W into x square by 2. This is our equation on section x of bending moment. Okay, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हुई। बी सेक्शन पे एट जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इज पॉइंट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। एट एक्स इक्वल्स टू एल, ए पे, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे l, प्लस r इंटू एल माइनस W L स्क्वायर बाय 2। ओके, दिस r इज 3/8 WL, 3/8 WL इंटू L माइनस WL स्क्वायर बाय 2, माइनस WL स्क्वायर बाय 2। This will give bending moment at A equals to minus of WL square by 8। इस इक्वेशन से मिलेगा आपको WL square by 8। This is bending moment at A. Okay, this is bending moment at A. Let us draw the diagram
of bending moment. At A, minus WL square by 8. At B, this will be 0. So due to this UDL, this will be parabolic representation. At this point, bending moment is 0. Suppose this is x. Suppose this is x, and at this point, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे अगर शेयर फोर्स 0 है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. सो शेयर फोर्स 0 किस डिस्टेंस पे है? x इक्वल्स टू 3/8L. अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 3/8L रखूं तो इट विल गिव द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. अगर मैं यहाँ पे रखूं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए शेयर फोर्स 0 है, तो जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. और शेयर फोर्स 0 है, x इक्वल्स टू 3/8L. तो इसमें रखिए R इज 3/8 W इंटू L, एंड x की जगह 3/8L माइनस W 3/8L square by 2. This is our maximum bending moment, and its value will be plus 9/128 WL square. So this value will be 9/128 WL square. This will already we have minus WL square by 8. अब आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सॉरी, ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट 0 है. देखिए इसमें जी बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0. 0 विल बी प्लस 3/8, R की जगह 3/8 WL इंटू x माइनस W इंटू x स्क्वायर बाय 2. This will give us value x equals to this will give x is 3/4. इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको x इक्वल्स टू मिल जाएगा 3/4L पे. ये डिस्टेंस x इक्वल्स टू 3/4L पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी. ये x इक्वल्स टू 3/8L, इस पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी 9/128 WL स्क्वायर. मेन कंसर्न, मेन जो चीज थी इसमें वो था फाइंड आउट करना R. अगर एक बार R मिल गया उसके बाद सिंपली एक कैंटिलीवर बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट हो जाएगा. ये एक रिएक्शन आपको मिल गई तो इसके अकॉर्डिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आराम से फाइंड आउट हो सकता है. इस तरीके का सवाल इक्वेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि R की वैल्यू क्या होगी. और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस कन्वेंशनल पेपर होता है, उसमें इसकी पूरी एनालिसिस प्लस आगे इसका डिफ्लेक्शन भी हम निकाल सकते हैं. वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.